Good morning, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh, and I'm here with one of the most favorite poem of mine, and that is the ball poem written by John Berryman. So I think this video is going into two parts. So let us see if I am able to complete it or not. So this is the compendium. Probably in the part one there will be a little overview of the poem. That is, you'll find details about the poet, then style of the poem, appreciation of the poem, and then probably in part two the poetic device and the heart of the poem. So without wasting any time, let us do something about the poet John Berryman. This is the image of the man, the great man John Berryman, who was born in 1914 and he died in 1972. This is his pic of an old age, the photo which is taken by Mark Kaufman, and it was published in the Life Picture collection. So John Berryman is not only a scholar, rather was not only a scholar but a professor and a poet by nature. He is best known for the Dream Songs, which was published in 1969. And in this collection, this particular poem which is in your syllabus was published. The Dream Song is an intentionally personal sequence of 385 poems back to back. He has written 385 poems in this collection, and later on this collection brought him the Pulitzer Prize to his honor and a National Book Award also. So in all of these poems he invented a style and a form which was able to accommodate a vast range of material while expressing his turbulent emotion. The boy, that is John Berryman, when he was, I think, 12 years old, he saw his father committing suicide in front of his eyes, and that is why in most of his poems you can see this turbulent emotion coming out to the surface. So here is one such poem. Let us enjoy it. So let's get started without wasting any time. The ball poem, and now line to line explanation. Hello, good morning, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh, and I'm here with one of the most favorite poem of mine, and that is the ball poem written by John Berryman. So I think this video is going into two parts. So let us see if I am able to complete it or not. So this is the compendium. Probably in the part one there will be a little overview of the poem. That is, you'll find details about the poet, then style of the poem, appreciation of the poem, and then probably in part two the poetic device and the heart of the poem. So without wasting any time, let us do something about the poet John Berryman. This is the image of the man, the great man John Berryman, who was born in 1914 and he died in 1972. This is his pic of an old age, the photo which is taken by Mark Kaufman, and it was published in the Life Picture collection. So John Berryman is not only a scholar, rather was not only a scholar but a professor and a poet by nature. He is best known for the Dream Songs, which was published in 1969. And in this collection, this particular poem which is in your syllabus was published. The Dream Song is an intentionally personal sequence of 385 poems back to back. He has written 385 poems in this collection, and later on this collection brought him the Pulitzer Prize to his honor and a National Book Award also. So in all of these poems he invented a style and a form which was able to accommodate a vast range of material while expressing his turbulent emotion. The boy, that is John Berryman, when he was, I think, 12 years old, he saw his father committing suicide in front of his eyes, and that is why in most of his poems you can see this turbulent emotion coming out to the surface. So here is one such poem. Let us enjoy it. So let's get started without wasting any time. The ball poem, and now line to line explanation. So children, now let's begin with the poem. First, a little about
the poem, and the poem says that this poem is a very beautiful and subtle poem about a little boy, a boy who has lost his ball, and the poet is observing him from a corner. तो कहानी है, कविता है एक ऐसे सीधे साधे छोटे से बच्चे की जो अपने बॉल के साथ खेल रहा है, और उस बॉल को जब वो गंवा देता है तो उसका क्या रिएक्शन है, और इस लॉस से उसे जीवन में क्या सीखने को मिलता है, ये है पोएम में. सो दिस लॉस ऑफ हिज बॉल टॉट हिम हाउ टू डील इन लाइफ, अ लेसन इन लाइफ. कि अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ें हमसे खो जाती हैं बिकॉज लॉस इज़ इनएविटेबल. तो हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते. हमारी लाइफ में हम कई चीज़ों से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, गंवाना पड़ता है, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हों, चाहे वो हमारे मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हों, चाहे वो एक छोटी सी बॉल हो जैसे इस केस में, इस बच्चे के केस में. और इन सारी खूबसूरत चीज़ों को जिनको हम गंवा देते हैं, दे कैन नॉट बी ईज़िली रिप्लेस्ड. उनको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता. और ये लेसन जो है ये एक पार्ट है जो हम जीवन में सीखते हैं व्हेन वी आर इन प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. जब हमारा पालन पोषण हो रहा होता है, एवरीवन हैज़ टू लर्न देम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर. हाउएवर इट इज़ पेनफुल फॉर द पोएट. पोएट के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ क्या है कि ये बच्चा जो है, ही इज़ वॉचिंग दिस बॉय who was playing in the streets, and then his ball merrily went into the water. तो इस बच्चे को देखते हुए जो कि बहुत सैड स्टेट में है, बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस्ड है, वो कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी चीज़ से अलग होना क्या होता है. और इसमें एक चीज़ है बेटा, ये इसको ध्यान मत दीजिए, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, ये इग्नोर कर देना आपको. सो बट उनको ये अच्छे से मालूम है, ही इज़ श्योर दैट द बॉल दैट ही हैज़ लॉस्ट श्योरली मेंट अ लॉट फॉर हिम, एंड उससे अलग होना इतना आसान नहीं है. तो आगे क्या, ये बच्चा क्या सीखता है इसके बाद से, और वो क्या चाहते हैं इस बच्चे को. पहले तो वो उसको कंसोल करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो डिसाइड करते कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है. या फिर वो उसको एक डाइम भी, एक जो यूएस की करेंसी होती है, वो उसको प्रेजेंट करने की सोचते हैं कि ये दे दूं, या उसे ये सलाह दे दूं कि तुम दूसरी बॉल खरीद लो, कोई बात नहीं. बहुत तरीक़ों से सोचते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली डिसाइड करते कि नो, आई विल नॉट गो. अब ज़रा बॉल पोएम की सेटिंग पर आ जाएं. ये मिस हो गया था बिफोर डिस्कसिंग दी अबाउट द पोएम. आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. तो सेटिंग क्या है बॉल पोएम की. दिस पोएम इज़ सेट नियर अ हार्बर, और ये जो हार्बर है ये ऑब्वियसली द पोएट सेज दैट द लिटिल बॉयज़ बॉल रोल्ड अवे फ्रॉम हिम एंड इनटू द वाटर. ये लाइन आप जब पोएम में पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दैट द पोएट, हालांकि स्ट्रीट का भी जिक्र है बच्चों पोएम में, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो स्ट्रीट्स का जिक्र है और उसके बाद हार्बर का है. और हार्बर क्या होता है, हार्बर एक, जिसको हम सिंपल टर्म्स में पोर्ट कह सकते हैं, वेयर द शिप्स एंड द बोट्स दे स्टैंड, बंदरगाह बोलते हैं. तो अगर स्ट्रीट से खेलता हुआ आ रहा है और फिर हार्बर के पास उसकी बॉल पानी में गई है, तो इट मीन्स प्रोबेबली बच्चा खेलते खेलते वहाँ पहुँच गया है. सो दिस बॉल हैज़ रोल्ड away from him and it has gone into the water. तो बच्चा भी और पोएट भी दोनों हार्बर के पास हैं. इनफैक्ट पोएट तो इतने पास हैं उसके कि वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन तक देख पा रहे हैं. उसको वो बहुत देर से और बहुत ध्यान से उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. तो आप ये मान सकते हैं कि पोएम में दो characters ही हैं. One is the poet and the other one is the boy. So let us move ahead to line number 1. The first stanza that consists of line number 1 to 4, and he says that
First line says that, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. So in particular lines में पोइट का ये कहना है कि एक सवाल वो पूछ रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो एक सवाल है उनके दिमाग में, मन में, पोइट के मन में. लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल को समझें, हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो लड़का कर क्या रहा है, तब हम शायद इस सवाल का जवाब दे पाएँ. सो ही जस्ट सॉ दैट अ यंग बॉय इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल. ही इज़ रोलिंग. He's playing with his ball, and then he has lost his ball. How he has lost his? He was bouncing it happily on its way. The ball was bouncing, and then it fell into the water. So street से होते हुए वो हार्बर के पास पानी में चली गई. फिर वो रीडर से क्वेश्चन पूछते. This question is not put up to boy. He's asking us to answer this. He asked this question to his readers. What the boy should do now that his ball is gone? अब उसे क्या करना चाहिए? बॉल तो चली गई पानी में. What he should do? So this question is actually put up to the readers. Okay? I saw it go. The poet himself saw it go. It means I told you the poet was standing near. So उन्होंने खुद देखा कि वो बॉल बाउंस करती हुई पानी में चली गई. Merrily bouncing. Merrily means gaily. Merrily means happily. Bouncing means jumping up and down. Bouncing means jumping up and down. So it was jumping up and down just few minutes ago down the street, but now merrily over there. और अब वो कहाँ है? पानी में. अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना बच्चों. हालांकि मैं पोइट्रिक डिवाइसेस पे पोएम की पैराफ्रेजिंग के बाद आऊँगी, बट थोड़ा यहाँ बता दूँ. merrily वर्ड जो है वो हमने मेरीली बाउंसिंग वर्ड जो है हमने किसके लिए यूज़ किया है? बॉल के लिए यूज़ किया है. ठीक है. और जब हम बॉल के लिए ऐसा कोई भी ह्यूमन ट्रेट एट्रीब्यूट करते हैं तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. बॉल कैसे खुश हो सकती है? इंसान खुश हो सकता है. क्यों? तो दिस इज़ व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन. और भी पोएटिक डिवाइस में बीच बीच में बताती रहूँगी, लेकिन डिटेल में मैं बिल्कुल एंड में, वीडियो के एंड में बताऊँगी. सो स्टे देयर, डोंट गो एनीवेयर. आई एम प्रोसीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट paragraph. So I hope this is very clear to you all. So the only question put up to poet, to readers by poet is what is he to do? क्या करना चाहिए उसे? When the ball is gone, what he should do? So let us move on to the next phrase, lines, that is 5th to 10th line. These are lines number 5 to 10. So let us see what is there in this lines. First of all, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour. Where his ball went, I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. So in particular lines में poet ने पहले तो ये सोचा थोड़ी देर के लिए कि he should go and console the boy. उसे ये समझा करके कि कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं लाइफ में, बॉल उसने खो दी, कोई नहीं. But he sees that there is no use to say this. उन्हें लगा कि उनकी consolation, any amount of consolation done to this child is not going to anyway relax him. कोई कहने का फ़ायदा ही नहीं है. मैं चाहूँ तो उसको समझा सकता हूँ कि बहुत सारी और गेंदें हैं. But I could see an ultimate shaking grief fixes the boy. इस बच्चे को एक ग्रीफ ने, एक दुख ने एकदम शॉक्ड कर दिया है. द बॉय इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग रिजिड. वो स्टिफ हो गया है, हार्ड हो गया है. ही इज ट्रेम्बलिंग, रादर काँप रहा है, और वो उसी जगह को स्टेयर किए जा रहा है जहाँ अभी अभी उसकी बॉल गई है. सो ही इज़ अंडर अल्टीमेट ट्रॉमा, शेकिंग ग्रीफ. एक ऐसा दुख, ग्रीफ, और ये है एडजेक्टिव, बेशक आईएनजी है,
लेकिन दिस इज़ एडजेक्टिव, तो जब भी किसी एडजेक्टिव को लगाया जाता है ऐसे, इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको मैं डिटेल में अभी वीडियो के एंड में समझाऊंगी। सो द चाइल्ड इज़ ग्रीव्ड, शॉक्ड, fixed at one place, trembling, staring down the place where just now the ball has gone, but the child is shaken. तो उन्हें लगता है जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। All his young days into the harbor, and the child could see कि उसका बचपन चला गया। What do you mean by all his young days? Again, there is appearing symbolism in this. Young days का मतलब यहाँ सिर्फ young days नहीं है। यंग डेज़ का मतलब है उससे रिलेटेड फॉन्ड मेमोरीज़, उसका बचपन, उसके बचपन के वो दिन, और वो सब पानी में जाता हुआ दिखा जहाँ उसकी बॉल चली गई। सो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन दिम। तो पोइट ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस किस्म की फॉल्स कंसोलेशन उस बच्चे को दे करके। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये बच्चा बिल्कुल ही विल नॉट फील बेटर इन एनी वे, और कोई फ़ायदा नहीं है उसे कंसोल करने का, बिकॉज अ फीलिंग ऑफ ग्रीफ हैज़ कम ओवर हिम। इस बच्चे के ऊपर दुख ने पूरी तरह उसे जकड़ लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट है, फिक्स्ड है, शिवरिंग, एंड ही वॉचेस द बॉल जो अभी अभी गया पानी, तो उसको ऐसा लगता है मेरा बचपन चला गया। तो इन सम वे दिस बॉल इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ द यंग डेज और सम फॉन्ड मेमोरीज और द पोजेशंस ऑफ दिस बॉय। और ऐसे समय पर वो डिसाइड करते हैं पोइट कि नहीं, गलत होगा अगर मैं इस बच्चे के पास जा कर के इसको कुछ भी मैं इसको कहूँगा तो इसको डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि उनके मन में आ रहा था कि कोई एक तरीका है जिससे हम इस बच्चे के दुख को दूर कर सके। पहले उन्होंने सोचा क्यों ना उसको एक डाइम दे दिया जाए। डाइम इज़ अ यूएस करेंसी, सेंट विच मीन्स सेंट, और उसको कहूँ कि जा कर के बेटा दूसरी बॉल ख़रीद लो, बहुत कॉस्टली नहीं है। लेकिन उनको समझ में आया इट इज़ वर्थलेस, यानी इट्स ऑफ नो वैल्यू। ये दोनों ही चीज़ें करना, उसे ये सलाह देना कि जाके दूसरी बॉल ख़रीद लो और उसे डाइम प्रेजेंट करना, इज़ नॉट गोइंग टू कंसोल हिम, इट इज़ of no value to him. So let us see now, proceed on to the next line. So these were 5 to 10 lines, and now line number 11 to 14. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external. कितने छोटे छोटे बिट्स में पोइट ने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं। जैसे इन लाइंस में वो ये कहते हैं कि दिस बॉय हैज़ समवेयर ही हैज़ सेंस्ड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? ही शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स, उसे अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, ऑफ हिज थिंग्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद पहली बार इस बच्चे को एहसास हुआ अपनी पहली जिम्मेदारी का कि मुझे अपनी बॉल संभाल के रखनी चाहिए थी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, द बॉय इज़ अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, और उसे अभी अभी ये रियलाइज़ हुआ कि ये बॉल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जिन चीज़ों को हम ओन करते हैं, जो चीज़ें हमें बिलोंग करती हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, इनको सिर्फ ओन करना हमारा राइट नहीं है, हमारी ड्यूटी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखना, ठीक है। और हालांकि ये सच है कि ये सारी चीज़ें आप कितनी भी सेफ रख लें, उनमें से कुछ चीज़ें जो आपसे अलग होनी है वो समय आने पर अलग होंगी। These things are not going to remain forever, and nothing you can own forever. People can take away these things from you. People can take, fate can take, destiny can take. So there is loss of things in life. तो आई होप आपको थीम बहुत अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। कोई भी
तुम्हारे लिए बॉल खरीद कर नहीं देगा इन लाइन में. पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तुमसे बॉल्स ले लेंगे. तो आपको ये एक कॉनोटेशन समझ में आ रहा होगा. बॉल वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड, देयर इज सिम्बॉलिज्म यूज्ड हियर. बॉल नॉट ओनली मीन्स द possession, it also means fond memories, the past days, your property, your land or something, your loved ones, your near ones, your dear ones. जिन चीज़ों से भी आप प्यार करते हैं वो बॉल है यहाँ. पीपल कैन टेक दीज बॉल्स. हो सकता है ये बॉल्स, मतलब आप बॉल को बड़े स्पेक्ट्रम से देखो, बड़े स्पेक्ट्रम में देखो, समझो, सोचो. बॉल यहाँ सिर्फ एक गेंद, एक खिलौना नहीं है, खेलने की चीज़ नहीं है. बॉल को यहाँ अब उसका कॉनोटेशन बढ़ गया, ब्रॉडर हो गया. तो ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो वैल्यूएबल हैं, प्रेशियस हैं, वो हमसे लोग ले लेंगे एंड इट विल बी लॉस्ट ऑलवेज. तो इस बच्चे को समझना होगा कि मनी एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल होता है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल? मनी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम चीज़ें खरीद तो सकते हो, बट यू कैन नॉट बाय इनर पीस. यू कैन नॉट बाय इनर पीस. जैसे बॉल यहाँ सिंबल है आपकी पोजीशन का, वैसे ही पोइट ये बताना चाहते हैं कि मनी इज़ एक्सटर्नल बिकॉज these important things in your life cannot be replaced even by money. ठीक है. सो लास्ट की 4 लाइन्स में आते हैं. दीज आर लाइन्स 15, 16, 17 and 18. So lines 15 to 18. So we are on the last part of the poem. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. तो वो बच्चा सीख रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर है, लेकिन उसकी उस डेस्परेट आँखों में, होपलेस आँखों में एक उदासी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा ये समझ गया है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी मतलब when you learn, there is a knowledge. When there is learning, that life में बहुत सारी चीज़ें you're going to lose them. Learning of loss of important things in life. So he is understanding that. और अब वो खड़ा है, चुपचाप घूर ज़रूर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसे रियलाइजेशन हो रहा है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का. फिर उसे रियलाइजेशन हो रहा है मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था. फिर उसे ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि जो चीज़ें जानी हैं वो जानी हैं, मैं उनको नहीं रोक पाऊँगा. वॉट एल्स कैन आई डू? आई कैन जस्ट स्टैंड अप. नाउ स्टैंडिंग अप हियर मीन्स टू स्टैंड अप, टू बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. इन लॉसेस को हमें बेयर करना ही पड़ेगा, वेदर वी वॉन्ट इट और नॉट. तो इस बच्चे ने एक सबक सीख लिया जीवन से. इस पूरे दुख के पीछे, इस सैडनेस के पीछे he has learnt an important lesson. और वो लेसन क्या है? The loss of things one considers precious are bound to happen, and he's learning a lesson that every man must learn, and a man must learn again and again. और वो ये कि हमें अपने losses को accept करना चाहिए. We should accept our losses, and not only this, we should move on. हमें आगे बढ़ना चाहिए. वी शुड मूव ऑन. ठीक है. एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पर. पोइट ने जो है एक लिबर्टी ली है. ही हैज़ टेकन दैट लिबर्टी ऑफ एक्सटेंडिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एट टाइम्स. देन ही हैज़ ऑल्सो टेकन दैट लिबर्टी. इनको हम इन्वर्जन कहते हैं. मैं अभी पोइटिक डिवाइस जब पढ़ाऊँगी तो इसके बारे में बताऊँगी आपको हाउ दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन. सो लेट अस मूव ऑन. ओके. सो बच्चों, अब तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो गई, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. ये 2 कुछ की सेंटेंसेस हैं, या कह लीजिए हार्ट ऑफ द पोएम, कि किस तरीके से पोएम में ये जो लोग हमसे बहुत, हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो चीज़ें हमें बहुत प्यारी होती हैं, वो कभी ना कभी खो जाती हैं, और अगर वो खो जाती हैं तो वो वापस नहीं लाई जा सकती. ये सच्चाई है जीवन की. और दूसरा ये कह सकते हैं कि देयर इज़ द थीम हिडन इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉस इन लाइफ. लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स,
लॉस ऑफ पोजेशंस, लॉस ऑफ लव्ड वंस, लॉस ऑफ मेमोरीज, लॉस ऑफ रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि किस तरीके से आपकी लाइफ में टेस्ट और ट्रायल्स जो होते हैं, ट्रिबुलेशंस जो होते हैं, वो इंसान को एक कंप्लीट शेप देते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, आपको रियलाइजेशन होती है। सो दीज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस शेप अस इन लाइफ, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस की मैं बात कर रही थी। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस आर सम ऑफ दी डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय पोएट फॉर द सेक ऑफ रिदम, और विजुअल्स क्रिएट करके वो पोएम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये ऐसे भी टूल्स होते हैं जिनको पोएम की मीनिंग को इन्हांस करने के लिए या मूड या फीलिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए पोएट यूज़ करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको जस्ट पॉज दी वीडियो एंड रीड इट केयरफुली, और जैसे जैसे मैं समझाते जा रही हूँ आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो एलिट्रेशन क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमें पोएटिक डिवाइसेस ही नहीं पता, तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से आपको पहले पोएटिक डिवाइसेस समझा दूं, फिर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। और हर पोएम में कई पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस का रटने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट। So let us move on to the first poetic device which is used in this poem. ये particularly मैंने इस poem के poetic devices लिए हैं। Alliteration एक stylistic device होता है जिसमें it's a game of words, it's a number of words having the same first consonant sound. So simple एक term में अगर मैं बोलूँ तो an alliteration is repetition of consonant sound, और वो series में आएंगे, they occur close together. अभी हम देखेंगे poetry में कैसे है। सिमिलरली एक नया पोएटिक डिवाइस शायद आपके लिए नया हो, मे बी आप इससे इंट्रोड्यूस ना हुए हों, एंड दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट वर्ड से याद रखिए एडजेक्टिव। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो जब भी हम पोएम में नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव को यूज़ करें, मतलब नॉर्मली तो हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, बट पोइट्री में हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नहीं करते हैं। इट इज़ किसी और चीज़ को वो क्वालिफाई करे। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल में मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने इसका जिक्र किया था, अभी समझा दूँ ताकि ये एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाए। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जैसे एक जगह एक टर्म आया था शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ, ओके। तो ग्रीफ तो दुख होता है, ठीक है, नाउन नहीं है। नॉर्मली हम ना एडजेक्टिव कहाँ यूज़ करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, बट यहाँ देखिए आप कुछ और ही इसका रोल है। शेकिंग एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम ग्रीफ को, दुख को ये बताने के लिए कि ऐसा दुख जो आपको शेकन अप कर दे, शैटर्ड कर दे, कांपने लगे, आप टेरिफाइड हो जाएं, ट्रेम्बल करने लगे, एकदम हिला कर रख दे आपको जो, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन की बजाय किसी और चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाए उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। इसमें रोल रिवर्सल भी कह सकते हैं इसको। रोल रिवर्सल का मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को डोमिनेट करे तो भी उसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लिए इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिपीटिशन क्या होता है? जब वर्ड्स और फ्रेजेस या क्लॉजेस को यूज़ किया जाए रिपीटेडली फॉर एम्फेसिस, दे आर कॉल्ड रिपीटिशन। हाँ, एक चीज़ और बताती चलूँ, रिपीटिशन और रिफ्रेन में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ है। रिपीटिशन होता है जब कोई शब्द, कोई फ्रेज़ या कोई क्लॉज रिपीट होगा, और रिफ्रेन होता है जब कोई स्टेटमेंट, पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस रिपीट होगी, उसको रिफ्रेन कहते हैं। सो प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिंबॉलिज्म क्या है? जहाँ सिंबल्स का यूज़ किया जाए किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी या आइडिया को सिग्निफाई करने के लिए। सिंबॉलिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी शब्द का एक मतलब, जैसे यहाँ पर हमारा वर्ड बॉल जो है उसकी सिंबॉलिक मीनिंग अलग है और लिटरेरी मीनिंग अलग है, यानी फिगरेटिव मीनिंग अलग है, ठीक है ना। तो लिटरल मीनिंग है बॉल, प्लेथिंग, कोई खेलने की चीज़, और दूसरा बॉल का मतलब है मेमोरीज, पोजेशंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी इनएनिमेट थिंग को, ऑब्जेक्ट को, या एब्स्ट्रैक्ट किसी आइडिया को जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि उसको हम एक ह्यूमन एट्रीब्यूट देंगे, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में अगर जो बच्चों की व्याकरण अच्छी है तो इसे हम मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण
मानव की तरह जब हम कोई क्वालिटीज़ इसमें बताएं। तो यहाँ बॉल को जैसे बोला गया था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैरीली बाउंसिंग, तो बॉल के लिए मैरीली वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना। जबकि मैरी और खुश कौन होता है, इंसान होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बॉल जो है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल था। उसी तरीके से एनाफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें डिलिबरेटली जो पहला वर्ड है, सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, पहला वर्ड है इनफैक्ट, उसको रिपीट किया जाता है ताकि एक आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। एनाफोरा के एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और वो एग्जाम्पल्स हैं पहले ही 4 लाइन्स में वॉट है, पहले फर्स्ट 2 लाइन्स में ये है एक एनाफोरा, दूसरा एनाफोरा मैरीली है थर्ड और फोर्थ लाइन में। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स एनाफोरा के हैं। आई होप बच्चों मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ, और अगर थोड़ा फास्ट हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को उतार भी लीजिए और उनको समझ भी लीजिए। अब जाते हैं एक और ऐसे ही पोएटिक डिवाइस की तरफ जिसको हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट होता है जब पोएट टेक्स दैट लिबर्टी ऑफ एक्सटेंडिंग लाइन्स, जितनी लाइन होनी चाहिए उससे थोड़ी और लंबी होती है, और वो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते, कोई टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता, पॉज नहीं होता, और हम डायरेक्टली चले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अभी एग्जाम्पल आएगा इसका, मैं जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। अभी इंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल पोएम से ही समझा रही हूँ। इन्वर्जन एक ऐसी टेक्निक जिसमें ऑर्डर जो होता है, नॉर्मल ऑर्डर होता है वर्ड्स का, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। इसके बारे में भी मैंने बताया था अभी पोएम में आपको, इसको और डिटेल में अभी बताऊंगी। इसका पर्पस क्या होता है, टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस और मीटर। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट टू 4 लाइन। आई होप आपको ये स्क्रीन पर क्लियर एकदम दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। हम बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, जो येलो से मैंने मार्क किया है उनको देखिए, वो हैं अब देखिए इसमें बहुत मिक्सचर, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम एनाफोरा को लेते हैं, चलिए एक एक करके लेते हैं। एनाफोरा में समझा चुकी हूँ आपको, वॉट ये रिपीट हो रहा है देखिए, और आप देखिए अगर ये फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिपीटिंग एंड दैट टू कॉन्जिक्यूटिवली, कॉन्जिक्यूटिव ज़रूरी है, वन आफ्टर दी अदर, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में आया, फिर थर्ड लाइन के बाद फिर चौथी लाइन में आया, तो ये 2 एनाफोरा हैं, पहला ये और दूसरा ये। आई होप आप कंफ्यूज ना हो रहे होंगे। उसी तरीके से पर्सोनिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि जब बॉल को हमने मैरीली, जब हमने ये उसको एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, जबकि बॉल एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वी आर लेंडिंग इट अ ह्यूमन टच, वी आर लेंडिंग इट अ ह्यूमन क्वालिटी, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। रिपीटेशन क्या होता है, मैंने बताया था, शब्द जब रिपीट होंगे, जब क्लॉज रिपीट होंगे, फ्रेजेस रिपीट होंगे, जैसे यहाँ वॉट, आप एक ही स्टेटमेंट में देखिए इस वॉट में डिफरेंस है, ये एनाफोरा है लेकिन ये रिपीटेशन है, शब्द रिपीट हो रहा है उसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिफ्रेन इस पोएम में है नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। उसके बाद है एलिट्रेशन। आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, who has lost his ball, H is getting repeated. So repetition of consonant sound is called alliteration, repetition of vowel sound is called assonance, उस पर ध्यान रखिएगा। और assonance के एग्जाम्पल्स भी हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ टू और डू में ओ, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको बहुत सारे वॉवल्स के रिपीटेशन भी मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको ज़रूर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल श्योरली क्लैरिफाई योर डाउट्स। अब आते हैं नेक्स्ट लाइंस पर। इस लाइन में मैं बात करी थी सिम्बॉलिज़म की, जहाँ बॉल को सिम्बोलाइज़ किया गया है, उसी तरीके से यंग डेज़ को भी सिम्बोलाइज़ किया गया है। 2 सिम्बॉलिज़म है यहाँ पर। बॉल्स क्या सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं, दोज प्रेशियस थिंग्स, दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी प्रोजेस, और यंग डेज़ क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो सिग्निफाई कर रहे हैं हमारे गॉन डेज, पास्ट डेज, ठीक है, तो उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। उसी तरीके से ट्रांसफर्ड एपिथेट में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। शेकिंग ग्रीफ में कैसे है, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ना यूज़ किया जाए कि कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच को वो कर ले, तो यहाँ पर ग्रीफ को एक एडजेक्टिव ने एक्सप्लेन किया, क्वालिफाई किया, और वो है शेकिंग। तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके बाद सबसे लास्ट लाइंस में आते हैं 3 और फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। अगर आप ध्यान दें
तो सबसे पहले इंजैबमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी, इंजैबमेंट क्या होता है? जब आप देखिए ये लाइंस में पोएट ने यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ कंप्लीट नहीं किया। आप देखिए ये फुल स्टॉप था, यहाँ कंप्लीट होता, ये नाउ को आगे ले आते वो नेक्स्ट लाइन में, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी लाइन में रखा और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कंटिन्यूड लाइन है, लेकिन यहाँ देखिए कोई पंक्चुएशन, टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कैपिटल एच कर दिया। पंक्चुएशन मार्क फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क्स के रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो गया इंजैबमेंट। उसी तरीके से रिपीटिशन, ये शब्द रिपीट हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से एलिट्रेशन, ये जो येलो पोर्शन है इसको आप देख लीजिए, ये एलिट्रेशन का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और है बस इन्वर्जन और रिपीटिशन का, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है लास्ट के स्टैंजा में, उसमें देख लेते हैं। बाइज अ बॉल बैक, एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि बी बी बी, इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो बी की रिपीटिशन हुई है। हाउ टू स्टैंड अप, पहले तो ले लेते हैं रिपीटिशन। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, ये रिपीटिशन है। देखिए एक फ्रेज जो है रिपीट हो रहा है, ये ठीक है, रिपीटिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बात कर रही थी इन्वर्जन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, और ये मेरे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो लाइव एक्सप्लेनेशन था उसमें मिस हो गई थे ये पोएटिक डिवाइसेस, सो आई थॉट कि इस तरीके से आपको बता दूं। और होना ये स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए था, एवरी मैन मस्ट नो वन डे। तो आप देखिए सेंटेंस को रिवर्स कर दिया गया, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो इस तरीके के पोएटिक डिवाइस को हम इन्वर्जन कहते हैं। So this was all children. I hope you will like the video. Please do share it with your friends. Subscribe to my channel, and those who have yet not tapped the bell icon, please tap it, because that will help you to get all the notification whenever a new video will be uploaded. Okay, thank you. God bless you children. So soon we will meet with another lesson or poem. Bye bye. God bless you all.